So, my second lecture is the classification of organic compounds. In my first lecture, I have already discussed about the what is organic compound and the introduction of the organic compounds. So, now we will discuss about the classification of organic compounds. So, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन वन कार्बन एटम and it will be attached with the hydrogen atom by the single bond or different bond like double bond or triple bond. So, organic compounds can be defined as any type of chemical compounds in which atom of carbon that could be one or more than one or are covalently linked to the other elements atom. Other element में क्या आएगा आपका hydrogen atom. Sometimes hydrogen replaced by the hetero atom, so the compound is called hetero compounds. In very simple terms, you can say that the organic compounds are simply any chemical compounds that have a carbon atom. But it does not mean that every carbon containing compound be known as organic, like cyanide, carbonates and carbide. So, these are the compounds which are included in the organic compounds. The best example of simplest organic compound is methane. Sometimes हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे ही कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, लाइक साइनाइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स. ये आपकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, ये डिफरेंट हेटेरो एटम से अटैच है. या तो आपका डिफरेंट हेटेरो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड इज ऑर्गेनिक, लेकिन पहले से ही आपका कार्बन एटम किसी डिफरेंट हेटेरो एटम से अटैच है, सो द कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें तो मीथेन, ईथेन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. फ्री एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर साइक्लोहेक्सेन, इथाइन, ईथेन और एंड इथेन. Types of the carbon compound. Now, the types of the carbon compounds is, first is the saturated carbon compound and the second will be unsaturated carbon compound. The saturated carbon compounds, these are the compound in which various carbon atom in a chain or a ring are linked together by single bond only. तो saturated carbon atom में single bond ही present होता है. तो यहाँ कार्बन कंपाउंड जो हाइड्रोजन से अटैच होता है, इट विल बी अटैच विद द सिंगल बॉन्डेड एटम. एल्केन्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड चेन कार्बन कंपाउंड. एल्केन जैसे कि मीथेन. मीथेन, द जनरल फॉर्मूला इज मीथेन इज CH4 एंड इन देयर कार्बन अटैच विद द हाइड्रोजन एटम बाय द सिंगल बॉन्डेड C, the single bond H, H, H. So, there are like that. Okay. Now, the unsaturated carbon compounds, these are the compounds in which various carbon atoms in a chain or a ring are linked together by a double or triple bond, like alkene and alkyne. In there, the carbon atom attached with the hydrogen atom by the double bond or triple bond. अब इस तरह से अटैच, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, लेकिन जब अटैचमेंट की बात आती है तो इनका जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें अटैच करते हैं. अभी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासीफाई बेसिकली एसाइक्लिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक, पहले से इंडिकेशन आ रहा है, एसाइक्लिक मतलब जो कंपाउंड होगा उसमें किसी भी टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा एंड इट विल बी ओपन स्ट्रक्चर. सो साइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड.
Now the cyclic chain compound, the cyclic terms used for the cyclic ring structure, and the compound is also called closed chain compound. So this is acyclic compound is also known as open chain, and the cyclic compound is also known as closed chain. Okay. Now the अब जब एसाइक्लिक की हम बात करते हैं तो एसाइक्लिक में आपका कोई क्लासिफिकेशन बाद में नहीं होता, ओपन चेन कंपाउंड्स आते हैं और ये जनरली सिंपल होते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं, ये किसी और फर्दर क्लासीफाई नहीं होता है. लेकिन जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो ये फिर से क्लासीफाई हो जाता है दो क्लासेस में. फर्स्ट इज एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक. अब पहले हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं. एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक टर्म्स जो आया है वो दो चीज़ों से आया है, एलिफैटिक और प्लस साइक्लिक. इसका मतलब है एलिसाइक्लिक. ओके. अब एलिफैटिक की हम बात करें तो एलिफैटिक हम किसको बोलते हैं? एलिफैटिक हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड को. तो ओपन चेन कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड. ऐसे ही क्लोज चेन कंपाउंड में जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं वो क्लोज चेन में आते हैं और एलिफैटिक में आपके ओपन चेन कंपाउंड आते हैं. तो जो एलिफैटिक टर्म आया है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक टर्म्स आया है एलिफैटिक के एली और साइक्लिक दोनों को मिक्स करके एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो टाइप के स्ट्रक्चर देते हैं. एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी देते हैं एलिफैटिक और दूसरे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन. ये कंपाउंड्स ऐसे हैं कि ये आपके एलिसाइक्लिक फॉर्म में भी रहेंगे, साइक्लिक फॉर्म में भी रहेंगे और ओपन चेन फॉर्म में भी रहेंगे. अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे. तो these are the alicyclic compound and it will be further divided into heterocyclic और homocyclic. अब heterocyclic और homocyclic का क्या मतलब है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड जब सिर्फ कार्बन एटम हाइड्रोजन से अटैच होता है, जब कंपाउंड्स में जो आपका रिंग अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर वो दे रहा है कंपाउंड और उसमें जो कार्बन है इट विल बी ओनली अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एटम, सो द कंपाउंड इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. When the carbon atom attached with the hydrogen atom and hydrogen atom is replaced by the other different type of heteroatom like nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, so the compound will be called heterocyclic compound. So these are the alicyclic compound and heteroalicyclic compound. Now the aromatic compound. Aromatic compound firstly known where the aroma like smell is present. Aroma, एरोमेटिक मीन्स आता है एरोमा से. एरोमा मीन्स होता है स्मेल, वो कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप की स्मेल प्रेजेंट होती है. अब एरोमेटिक कंपाउंड में आपके कई क्लासिफिकेशन आ जाते हैं. पहला तो आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आता है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक. ठीक है, यहाँ पे एक और होना चाहिए था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. जैसे कि इसमें होमोसाइक्लिक में क्या आ जाएंगे आपके वो कार्बन कंपाउंड्स आएंगे जिसमें सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन जो होगा सिर्फ हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा. जब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक की तो हेट्रोसाइक्लिक में हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय द अदर डिफरेंट हेट्रो एटम. तो ये एक तो आ गया एरोमेटिक में. दूसरे आते हैं इसमें बेंजोनाइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड. बेंजोनाइड कंपाउंड वो होते हैं दे विल फॉलो द हकल रूल और इट विल बी लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर लाइक C6H6. ओके. और नॉन बेंजोनाइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है एंड इट विल नॉट फॉलो द हकल रूल. ओके. सो दिस इज द general classification of the organic compounds. Now the organic compounds can be classified on two bases. Firstly, we'll talk about the organic compounds which are based on the structure, and secondly
we will discuss the organic compounds which are based on the function. तो अब हम बात करते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स की, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन देखा था. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. सो इन देयर एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक क्या बताया था? एसाइक्लिक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन चेन एंड एलिफेटिक कंपाउंड. इन देयर नो साइक्लिक रिंग, नो साइक्लिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. कंपाउंड जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा इट विल बी ओनली ओपन चेन. ओके, सो acyclic compounds are just opposite to cyclic compounds because their molecules don't form any ring. It is called open chain compound because they have a linear structure, or also called the aliphatic compounds. The best examples of these compounds are cyclic aliphatic compounds and alkane. So in there alkane जो होता है वो basically basic example होता है aliphatic compound का और open chain compound का. Open chain compounds can be understood by straight chain compound and branch chain. दोनों ही आ जाते हैं इसमें, straight chain भी आते हैं, branch chain भी आते हैं. स्ट्रेट चेन में जो कंपाउंड आते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो ब्रांच चेन में आते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, आइसो एंड नियो. ठीक है, तो दीज आर द ओपन चेन कंपाउंड. इन द स्ट्रेट चेन कंपाउंड डोंट हैव एनी साइड चेन्स, बट द ब्रांच चेन कंपाउंड्स एटम हैव द स्ट्रेट चेन एंड वन और मोर देन वन साइड चेन आर अटैच्ड टू इट. Like that we can see the example butane. This is the straight chain or it is also called the normal butane. This is the isobutane. Okay, ये आपका 3,3-dimethyl 1-butane है. इसको हम नियो फॉर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको IUPAC नेमिंग दी है. ये है 1-butene, ये भी आपका नॉर्मल में है, बट यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से हमने इसको डायरेक्ट IUPAC नेमिंग दी है. 1-butene ये स्ट्रेट चेन है. ये दोनों आपके जो स्ट्रक्चर है क्या है? ये ब्रांच चेन में है और ये स्ट्रेट चेन में है. द साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड. अब साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज रिंग कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड. As its second name suggests, cyclic compounds are those kind of compounds where one or more than one number of atoms get connected to form a close ring. It is mandatory that every ring of these compound is to be the same size. Cyclic or closed chain compounds always have a prior place in human beings' day-to-day life as human encounters these compounds on the daily basis. जो साइक्लिक कंपाउंड है वो बेसिकली आपके बहुत इस समय यूज़ हो रहे हैं डेली बेसिस लाइफ में. जितनी भी आपकी रिसर्च हो रही है, जो भी नए आपके रिसेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, मेडिसिन्स हो रही हैं, उनमें जो बेसिकली रोल है वो साइक्लिक कंपाउंड का, उसमें भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जैसे कि पायरोल, पायराजोल, ऑक्साजोल. सो इनके क्योंकि बहुत यूज़ है, इन रिंग्स के बहुत यूज़ हैं, इनको इनमें चेंज करके, इनको एज अ लीड कंपाउंड लेके इसको हम चेंज करके इसमें सब्स्टिट्यूशन करके इनके डेरिवेटिव्स बना के बहुत टाइप के ड्रग्स जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग, एंटीपायरेटिक, मतलब डिफरेंट कैटेगरी की ड्रग मेडिसिन्स डेवलप की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं. They are also categorized into two divisions. The first division is about heterocyclic and the second division is homocyclic. अब heterocyclic जहाँ पे कार्बन जो होगा वो कोई डिफरेंट एटम से अटैच होगा रिंग में, और मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के, और होमोसाइक्लिक में कार्बन अटैच होगा ओनली हाइड्रोजन से रिंग में.
Heterocyclic compounds are a kind of cyclic compounds in which the ring structure exists. We can understand these compounds in very simple definition, as it is like of any other dominant branch of organic compounds in which two or more than two atoms join in the ring shape in their molecules. Although they have atoms of carbon, it must be noticed that at least one atom of another element also exists. The very familiar example of these compounds are synthetic dyes, nucleic acid and most of the drugs. Heterocyclic compounds are divided into two broad categories, which are named as alicyclic heterocyclic compound and aromatic heterocyclic compound. तो पहले हम हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक में आपका क्या आता है, बेंजीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इसमें कार्बन एटम जो है अटैच किससे है, सॉरी हाइड्रोजन से. अब इसी हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस करा देते हैं और इसमें कार्बन के साथ मान लो नाइट्रोजन जोड़ देते हैं या ऑक्सीजन जोड़ देते हैं या सल्फर जोड़ देते हैं, कोई भी डिफरेंट कंपाउंड जो एलिमेंट जोड़ देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो कंपाउंड आपका कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है. नाउ द एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं. एलिसाइक्लिक वर्ड मैंने क्या बताया था, इट विल बी combined with the aliphatic compound and the cyclic compound, इसीलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. इसमें जो भी आपके कंपाउंड्स आते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि दोनों टाइप के स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एलिफेटिक भी और साइक्लिक भी. So we can understand these compounds by simple lines. Ring structures of these compounds have one or more heteroatoms. We can understand these compounds by a few examples, which are tetrahydrothiophene, tetrahydrofuran and so on. और अगर हम बात करें डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन है. अब साइक्लोप्रोपेन का आप स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हो, CH3 CH अगर अब हम इसकी बात करें इसको साइक्लिक में देने की, तो ये इस तरह से आएगा CH3 CH2 CH3. अब यही यहाँ H को जो आपका एक कार्बन के साथ अटैच है, वो अगर हट के उसकी जगह कोई डिफरेंट हेट्रो एटम ऐड हो जाएगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड. जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. फ्यूरान क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर फ्यूरान का होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान. ठीक है. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में क्या होगा, ये है आपका हेट्रो एलिसाइक्लिक. ये फ्यूरान है, हेट्रोसाइक्लिक है, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये आपका फ्यूरान है, हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक की, तो हेट्रो एलिसाइक्लिक पे फ्यूरान जो होगा वो इस तरह होगा, मतलब ये कहलाएगा आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, और ये होगा आपका हेट्रो एलिसाइक्लिक. हेट्रो एलिसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि हम इसको रिंग
स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं और ओपन चेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम सिर्फ रिंग में ही लिख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में ही लिख सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में. ठीक है. नाउ द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी डिफरेंट बताए थे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और उसके अलावा आपके बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड. दीज कंपाउंड्स कैन बी इजली डिफाइंड बाय सिंपल अंडरस्टैंडिंग. Unlike alicyclic heterocyclic compounds, molecule of these compound have one or more than one heteroatom. Example of these compounds is thiophene, furan and so on. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल बताया था आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल में थायोफीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल. ये आपके सबसे बेसिक रिंग्स हैं जो यूज़ होती हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, और ये एज अ लीड कंपाउंड ली जाती है और इनका सब्स्टिट्यूशन करके मतलब इनमें सब्स्टिट्यूशन करके, एडिशन करके, सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट इनकी अदर स्ट्रक्चर मतलब इन रिंग को बेसिक लेके इनके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं. तो ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे ये है पायरोल है, दिस इज़ थायोफीन, दिस इज फ्यूरान. ओके. तो यहाँ पे एक मिनट, पायरोल के साथ H ऐड होता है क्योंकि वैलेंसी पूरी होती है, हाइड्रोजन एटम N के साथ ऐड होता है. तो ये रिंग जो है ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है, और इसमें क्या हुआ है, बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, बस एक कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से है उसको रिप्लेस करके, जैसे इसमें सल्फर ऐड हो गया है, इसमें ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट हो गया है, इसमें नाइट्रोजन हो गया है. तो इस तरह से आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. नाउ द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स. इफ वी talk about organic chemistry in homocyclic compounds are the type of cyclic compounds unlike heterocycle in which the ring structure is formed by the atoms. This ring structure is made up of the same elements and atoms, and this element is called the carbon and the compound is also called carbocyclic compound. तो वो ring structure जिसमें सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व हो, जैसे कि बेंजीन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं, और होमोसाइक्लिक तो होते ही हैं. बेंजीन है, बेंजीन में आपका बेंजीन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में आता है. अगर हम बाईसाइक्लिक की बात करें तो बाईसाइक्लिक में आपका आता है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन. अगर हम ट्राईसाइक्लिक की पॉलीसाइक्लिक की बात करें तो इसमें आपका आता है anthracene. So this is the classification of homocyclic compound. This is the monocyclic, एक रिंग प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन एटम की. दिस इज द बायोसाइक्लिक, दो रिंग प्रेजेंट है. दिस इज द पॉलीसाइक्लिक, देयर आर 3 रिंग्स आर प्रेजेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राईसाइक्लिक. सो दीज आर द होमोसाइक्लिक कंपाउंड. इन देयर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द रिंग. देयर इज नो हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द रिंग and also called carbocyclic compounds. No element other than carbon exists in this compound. तो ये आपके इसके अलावा अगर हम इसमें डिफरेंट एटम ऐड कर देंगे जैसे कि बोरॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, सो द रिंग विल बी हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कंपाउंड्स. द फर्स्ट कंपाउंड इज नोन एज एलिसाइक्लिक एंड द सेकेंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड. फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, फिर इसमें भी सेम वही चीज़ है. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो दोनों टाइप के होंगे, ओपन चेन भी देंगे, क्लोज चेन भी. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का. दीज आर द कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन. ये आपके एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हैं, और ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही इसमें प्रेजेंट है. इसमें जो एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम की रिंग होगी, और बेंजोनाइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनाइड भी हो सकते हैं.
और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनको एरीन्स भी बोलते हैं, ओके और इनमें एरोमा लाइक स्मेल प्रेजेंट होती है। These compound can be distinguished by one or more than one planar rings of the atom linked by the covalent bonds of two different types. A few examples of these compound are benzene and toluene. Benzenoid aromatic compounds, the compound it will be follow the Huckel rule. These aromatic compounds are mainly obtained from the benzene, and these compound can be arranged as monocyclic, bicyclic and tricyclic. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, in bicyclic, tricyclic ring there are two or more than ring present, like example naphthalene, anthracene. Non-benzenoid compounds, the compound there is no benzene ring present and it will not follow the Huckel rule. These are aromatic compounds have special stability. The example is tropylene and azulene. क्लासिफिकेशन अदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग तो और डिफरेंट टाइप के, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जाता है कंपाउंड के फंक्शंस चेंज हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे कि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग वो जो कंपाउंड का नेम होगा उसका फंक्शन होगा वो चेंज होगा, ओइक एसिड के नाम से होगा। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसका कंपाउंड का नेम अल से होगा और फंक्शन भी चेंज होगा। एल्कोहलिक कंपाउंड है तो उसका कंपाउंड का नेम ऑल से होगा और उसका फंक्शन चेंज होगा। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप द कंपाउंड विल बी डिफरेंट टाइप। दीज आर द एग्जाम्पल लाइक अमाइड, एल्कोहल, अमाइन, एल्कलाइन, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। अमाइड के फिर क्लासेस हैं ये डिफरेंट ग्रुप की के अकॉर्डिंग और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, थैंक यू।